Good morning, everyone. Good morning, sir. Welcome. Uh, as usual, in our each lecture item, I see most of the students joining with the name of device. Again and again, I repeat myself. Everyone, whoever is new or is attending my lecture, the first thing everyone must do, they must rename themselves. So go to the participant section. You can see your name or your device name, and then you can rename yourself. So it's better that you rename yourself. Maybe sometimes you are using your parents' mobile or laptop, so their name may be visible here. So that also you do. You rename yourself first. Okay. So then we'll start. Uh, in the last lecture, we discussed our last topic, vernier calipers. So vernier calipers. So we'll see. Okay. So in the last lecture, we were discussing the vernier calipers. This one. तो मैं थोड़ा सा फिर से रिपीट करता हूँ एक बार कि वर्नियर कैलिपर्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं और कैसे डिस्कस करते हैं. ऑलरेडी आप लोगों ने एक बार देख लिया हुआ है. स्टिल लेट्स सी. So vernier calipers में मैंने बताया हुआ है there is a main scale, this one is a main scale and there is a vernier scale. So this green color scale shown here is a vernier scale. So the main important thing is how we take a reading. So there are two steps involved for any reading. So what are these two steps? Number one, to take the main scale reading means how you want to take the main scale reading and how you'll be taking the vernier scale reading. So it is pretty simple. This vernier, if you see there is a space, there is a blank space in this part. You can see the back side of main scale. So in any vernier, you will see two things. You will see one main scale and then you will see a vernier scale coinciding with it. So हमें दो चीजें find करनी है. What the first thing, main scale reading, then second thing is vernier scale reading. तो भी स्टेप क्या है? स्टेप बड़ा सिंपल है. मेन स्केल रीडिंग लेने के लिए वी चेक द जीरो ऑफ वर्नियर वेयर इट लाइज. द जीरो ऑफ वर्नियर इज जस्ट हेड व्हिच डिवीजन. तो अगर हम इस फिगर में देखें, इट इज 4, देन 4.1, 4.2, इट इज जस्ट हेड ऑफ 4.2. So we got the main scale reading as 4.2. Then for the vernier reading, we said check which division of vernier is coinciding with the main scale. Pretty simple. Which division? So in this scenario, the third division is coinciding with the vernier scale. That means vernier reading is 3. And we know that the least count of vernier is 0.01 centimeter. That's why this 3 will not be added with 4. Of course, you can see it is just ahead of 4.2, means 4.2 and something. So that something will be this 3 verniers reading 4.23 centimeter. So how we got this? We multiplied this 3 with the least count, that is 0.01 centimeter, and we got this value. So then let's see in this one. So in this one again, the zero of vernier is ahead of, if I count to this, it is just ahead of this value, so which is 4.6. Then to find out the vernier, I'll check which reading is directly coinciding. So वर्नियर में देखना है यार कौन सी रीडिंग coincide कर रही है. तो देखो यार 0 के बाद 1 2 3 ये सब कुछ भी coincide नहीं कर रहे हैं. And when you see this 9 is exactly coinciding, so that means vernier reading will be 9. So our answer will be 4.69 centimeter. So that's how we can discuss vernier's reading. Then again I given this value, you can also see. So आप एक बार सोचें, no need to answer in the chat box, just see by yourself. I'll write the answer. So what are the steps? Number 1, to find the main scale reading. So check, this one is a 4, then 0.1, 0.2, 0.3, 0.4. It is just ahead of 4.4. So the first thing, the reading of main scale will be 4.4 centimeter. Then we need to find the vernier's reading. So we'll check which reading of vernier is coinciding. So the zero of vernier is this 1, 2, 3, 4, 5. You see,
the 5/5 division is exactly matching with the main scale. That means vernier reading is 5. And now we need to multiply it with its least count so that it can come to the second place of division, 4.45 centimeter. So that's how we discussed how to handle or how to solve this vernier. Now, the next point was there can be some error. There can be some error, which means when there is no object. I told when there is no object. If there is no object, then the reading must be 0. That means the reading should look like this. There is a main scale and this is a vernier scale. The 0 of both must be coinciding. That's why the reading of both will be 0. But that is not the always. So see, in this particular section, suppose these two scales are just joining, there is nothing in between them in this section. So of course the 0 of vernier will match with 0 of main scale, but we can see the 0 is a bit ahead. The 0 is a bit ahead of the main scale, which means there is certain reading. So how to take this vernier reading? To check which column exactly matches. So as we see, the third column exactly matches. That means the reading of vernier is 0.03 centimeter. This reading is called zero error. Zero error means when the reading should be 0, the reading isn't 0. That's why there is a zero error. Now, so in this zero error section, there are two types of possibility. Number one, our reading might be ahead of the 0 or it might be just below the 0. So if it is before the 0, that means you can see by the simple math, if it is going forward, that means without any initial value, it is taking some reading. That's why it is called a positive error. And if it is backside of the 0, that means without any reading, it is just backside. So that's why this error is called negative error. So there are two possibilities, positive error and negative. अब इसे करना क्या है, मतलब कैसे इसे टैकल करना है, तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जीरो एरर को कैसे टैकल करते हैं. जीरो एरर का सिंपल सा मीनिंग है हमें इसे करेक्ट कर देना होता है. क्लियर? तो हम इस चीज को करेक्ट कर सकते हैं. तो वापस से आते हैं और अपने नोट्स में से ये सेक्शन डिस्कस कर लेते हैं. क्लियर? तो हमने नोट्स में डिस्कस किया था वर्नियर कैलिपर्स. वर्नियर कैलिपर्स में हमने डिस्कस किया कि इसका लीस्ट काउंट कितना होता है. तो हमने बताया कि इसका लीस्ट काउंट जो मेन स्केल है उससे भी 1/10 होता है. और एज वी नो मेन स्केल इज 1 mm और विच इज 1/10 of centimeter. So this will be 1/10 times of this also. So the least count of main scale is 1 mm or 1/10 centimeter. So 1/10 of main scale means 1/10 of mm, which is 0.1 mm, or in centimeter we can write 0.01 centimeter. सर ये सबको बहुत ध्यान देना है. मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा गलती होती है mm और सेंटीमीटर को लेके. हम जो अपना थॉट रखेंगे वो सेंटीमीटर को लेके रखेंगे. इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि याद रखो क्या कि 0.1 सेंटीमीटर ये हो गया हमारा मेन स्केल, फिर 0.01 सेंटीमीटर ये हो गया वर्नियर, 0.001 centimeter up to 3 digits will be our screw gauge. उसको अगर mm में कन्वर्ट करना है तो फिर इसको हम बोल सकते हैं इट इज मोर इक्विवेलेंट टू 1 mm and this is 0.1 mm and this will be 0.01 mm. तो mm में we get second digit only up to 2 digits. तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान देनी है, गलती नहीं करनी है. फिर अब बात आते हैं एक्सप्लेनेशन में कि हाउ वी सॉल्व दीज वैल्यूज, दीज लीस्ट काउंट. क्लियर? तो यार मुझे लगता है रीडिंग लेना तो सबको आ गया. हाउ वी टेक द रीडिंग फ्रॉम वर्नियर कैलिपर्स. अब बात करते हैं, मैंने बताया था जैसे पियरे वर्नियर है जिन्होंने डिजाइन किया था वर्नियर कैलिपर्स, उन्होंने एक स्टैंडर्ड लिया. बट इफ यू आर नॉट लाइक इंटरेस्टेड इन टेकिंग स्टैंडर्ड वैल्यूज और किसी अदर स्टूडेंट ने किसी अदर कंपनीज ने डिफरेंट टाइप का वर्नियर बनाया है तो वो बना सकते हैं. तो अगर डिफरेंट टाइप का वर्नियर बनाया देन हम ये जो हमने आंसर्स डिफाइन कर लिए हैं, दीज आर स्टैंडर्ड वर्नियर्स.
मे बी कोई डिफरेंट वर्नियर होगा तो ये आंसर वैलिड नहीं होगा. देन यू नीड टू नो द बेसिक्स, व्हाट हाउ वी डिफाइन दीज लीस्ट काउंट्स. सो देखें एक नया फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा. हाउ वी सॉल्व फॉर द लीस्ट काउंट, how we solve for the least count. So how we solve for the least count, it is pretty simple. Last class I showed, like suppose this minimum division is of main scale, this minimum division of main scale. Then I showed, like if the this scale division, if it is a little less, suppose this one is a vernier, so if we subtract both, we can get this smaller value also, this. So this was main scale and this was vernier scale, and if we subtract both, we can get the least value. So to get the least count, it is quite simple, that we do one main scale division and we subtract it with one vernier scale division. That will be the least value. Clear? तो ये पता है हमें कि मेन स्केल के बारे में तो हमें काफी सारी डिटेलिंग पता होती है. मेन स्केल के बारे में हमें काफी सारी डिटेलिंग पता होती है, बट वर्नियर के बारे में नहीं पता होता है हमें. तो हमें क्वेश्चन में गिवन होता है कि हाउ आवर वर्नियर इज, मींस हमें क्वेश्चन में गिवन होता है, जैसे मैंने बताया था कि जो हमारा स्टैंडर्ड वर्नियर है, जो हमारा स्टैंडर्ड वर्नियर है, ये अगर आप स्टैंडर्ड वर्नियर में देखेंगे, सो व्हाट यू विल सी दैट 10 division of vernier, the bottom, these bottom readings are of vernier, and this inside which you are seeing are main scale. So this is a main scale and this is a vernier scale. So the 10 column of vernier matches with the 9 column of main scale. So as we can see, these are 1 and these are vernier scale. So this 10 column of vernier scale are matching with 9 column of main scale. 9 column of main scale. So it is clear that 10 vernier are matching with 9 main scale. So one vernier will be 9 by 10 of main scale. Clear? So ये फिगर आपको क्लियर होना चाहिए कि वर्नियर कैसा दिखने वाला है. अभी हम आते हैं प्रॉपर अपने सिनेरियो में. So we can say, we can take any values, मैटर नहीं करता, बस याद रखना पहले किसे रखना है, वर्नियर को. So if there are n vernier, small n, and they are equivalent to capital N times of main scale division. So what will be the worth of one vernier scale division? One vernier will be capital N by small n of main scale. And अब हमें वर्नियर की वैल्यू पता चल गई है, तो अब हम रख देंगे यहाँ पर. So the least count is one main scale minus one vernier, but one vernier is capital N by n. और हमने यहाँ पर वैल्यू रख दी, मेन स्केल को कॉमन लिया, सो ये आ गया n माइनस एन बाई एन. क्लियर? और मेन स्केल डिवीजन. तो ये हमारा बेस कॉन्सेप्ट है. ये कॉन्सेप्ट कहीं पे भी अप्लाई होगा. ये जो हम बोल रहे हैं, इट इज वैलिड फॉर एनी टाइप ऑफ मेन वर्नियर. बट इन स्टैंडर्ड अगर हम बात करें, तो स्टैंडर्ड में क्या होता है वो लिख देते हैं. स्टैंडर्ड होता है 10 वर्नियर स्केल डिवीजन मैचेस विद 9 मेन स्केल डिवीजन. तो ये हमने यहाँ पर स्टैंडर्ड वर्नियर लिख दिया हुआ है. तो इनकी स्मॉलर कैपिटल एन की वैल्यू रख दे तो लीस्ट काउंट आ जाती है 1 by 10. तो इस तरीके से हम लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर फाइंड करते हैं. लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर, तो फॉर्मूला क्या है फिर से एक बार देख लेते हैं. लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैसे फाइंड करते हैं? सो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर इज 1 मेन स्केल माइनस 1 वर्नियर स्केल. सो द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर इज 1 मेन स्केल माइनस 1 वर्नियर स्केल. सब लोग यार ध्यान दो, 1 मेन स्केल माइनस 1 वर्नियर स्केल. नाउ यू नीड टू फाइंड द वर्थ ऑफ वर्नियर स्केल. सो एज आई नो, स्मॉल एंड वर्नियर स्केल मैचेस विद कैपिटल एंड मेन स्केल. ये क्राइटेरिया है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा. ये मेजर क्राइटेरिया है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा. उसके बाद आप मेन स्केल की वैल्यू ले लेंगे. बस आपको 1 मेन स्केल माइनस 1 वर्नियर की वैल्यू माइनस करनी है. जो भी वैल्यू माइनस होगी वो आ जाएगी. तो एज पर द स्टैंडर्ड हमने वैल्यूज लिख ली हैं, तो लीस्ट काउंट 1 by 10 टाइम्स आ जाता है. देन हमने डिस्कस कर ही लिया है मेथड्स ऑफ गेटिंग द रीडिंग इन द वर्नियर. मैंने बताया है चेक करना है जीरो ऑफ वर्नियर कहाँ पर है, जस्ट अहेड ऑफ विच रीडिंग. देन वी कैन गेट द मेन स्केल रीडिंग, एंड बाय चेकिंग which value will coincide, we can get the vernier scale reading. So let's see our example.
So in this example, I have shown certain values. So you can guess here. Ki suppose the bottom one is a vernier reading, this one, and this is a main scale reading. Now what value you will predict? So first you need to see 0. 0 is matching with which column or just ahead of which column. So as we see, this is 2, then 1, then 2, then 3. It is in between 2. 2.09. Yeah. So it will be 2 point, not 09. So first we need to find what it is. So it is the 0 is just ahead of 2. Clear? So that means this main value is 2.2. So if I focus this value and this value, so this is 2.3 and this is 2.2. So we need to check it is add of which value. So it is just add of 2.2. So 2.2 centimeter will be main scale. Then to find the vernier scale, we'll check which column exactly matches. So in this particular scenario, uh, which column is exactly matching? 7th column. Remember, as someone just spoke, uh, we do not see which column of main scale matches. हमें वर्नियर का रीडिंग चाहिए. तो दैट मीन्स अगर मेन स्केल इज द कॉलम इज मैचिंग विद द मेन स्केल 9, तो 9 नहीं लेना है. क्या लेना है? वर्नियर, बिकॉज दिस सेकेंड थिंग इज द रीडिंग ऑफ वर्नियर. तो हमें ये नहीं देखना है कि मेन स्केल में कहाँ पे मैच करेगा, हमें क्या देखना है कि वर्नियर स्केल में कहाँ पे मैच करेगा. सो वर्नियर स्केल में इट इज मैचिंग एट 7, so it will be 7.01. so the value will be 2.27. so as I am explaining this question and expecting कि जो शीट दिया हुआ है, मैंने ग्रुप पे शीट डाला है, उसमें जो एक्सपेरिमेंटल स्किल के क्वेश्चन है वो आज आप लोग सारे सॉल्व कर लेंगे. चले, तो मुझे लगता है अभी आपको ये वैल्यू समझ में आ गई होगी और हमने बार बार ये चीज़ फोकस किया हुआ है कि अगर हमें चाहिए तो हमें मेन स्केल की रीडिंग लिखनी पड़ेगी. तो हमने यहाँ पर मेन स्केल की रीडिंग लिख दी है. ये फिर वर्नियर स्केल की लिखनी होती है. ये नहीं कि वर्नियर कहाँ पे कोइंसाइड करेगा, हमें चेक करना है कि वर्नियर का कौन सा कॉलम कोइंसाइड करेगा. देन वी मल्टीप्लाई विद द लीस्ट काउंट एंड वी गेट दिस वैल्यू. मैं बार बार क्यों समझा रहा हूँ कि यार ये मल्टीप्लाई विद द लीस्ट काउंट की हैबिट डालो, बिकॉज देयर माइट बी सम डिफरेंस इन डिफरेंट वर्नियर. तो अभी हमें पता है कि हमारा वर्नियर 0.01 है, तो आपको पता है कि इट कम्स इन द नेक्स्ट डिजिट. बट अगर ये डिफरेंट होगा देन यू नीड टू मल्टीप्लाई एंड ऐड अप प्रॉपर्ली. तो इस तरीके से हम रीडिंग यहाँ पर लिख सकते हैं. तो चलें एक बार हम ये देख लेते हैं, सारे लोग ये क्वेश्चन रीड करें. क्वेश्चन नंबर 2 रीड करें सब. No need to answer, just read and solve. I'll explain the answer, then just check by yourself whether it was correct or not. So I'll read the question. The length of a thread measured from a vernier is such that the main scale is 35 mm and the sixth division of vernier coincide with the 42 mm of main scale. Find the length of the thread. So it is a trick question, it is not straightforward. गुड, वेरी गुड. सो आई थिंक आपको पता चल गया होगा. 35 mm का मतलब सबसे पहले क्लियर होना चाहिए. 35 mm का मतलब है 3.5 सेंटीमीटर. So the main scale reading is either 35 mm you can write or you can say 3.5 centimeter. Now to see the vernier scale, हमें ये नहीं मतलब कि वर्नियर कहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है, 4.2 पे कोइंसाइड कर रहा है और आप 4.2 लिख दे. नहीं, we focus on which division of vernier coincided. तो वर्नियर की रीडिंग क्या है? 6. It's very good. Its least count is 0.1. So you will get 3.56 centimeter. Or if the option are not in centimeter, so you should answer in the mm. तो mm में कितना हो जाएगा? mm में next division ही होता है. So it is 35.6 mm. So हमारा final answer होगा 35.6 mm. Because there is a possibility कि centimeter की जगह option सारे mm में ही दिखे. So in this question I have written like 35.6 mm. I guess ये आपको क्लियर होगा.
then we'll discuss the zero error again. So I already told what is the zero error. There are two type of zero error, positive and negative. जिसमें से मैंने बताया पॉजिटिव कब होगा, इफ द रीडिंग इज इनिशियली हायर. हायर मीन्स अगर वो रीडिंग किस साइड पे है, राइट साइड पे है, तो जीरो क्या होगा, पॉजिटिव एरर. राइट साइड पे कैसे ऐसा क्वाड्रेंट सिस्टम बना लेते हैं ना, इसको पॉजिटिव बोलते हैं, इसको नेगेटिव बोलते हैं. तो क्लियर है कि अगर हम ऑलरेडी हायर रीडिंग बता रहे हैं, दैट मीन्स इट इज अ पॉजिटिव एरर. एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट नेगेटिव एरर, देन इट विल बी अ लोअर वैल्यू. अच्छा, अब बात आती है कि रियल वैल्यू निकालनी कैसी है, जीरो एरर को कैसे हैंडल करना है. तो हमने बताया कैलकुलेटेड वैल्यू से जो आपके ऑब्जर्व वैल्यू है, जीरो एरर सब्ट्रैक्ट कर दो. क्लियर. अच्छा, एक टर्म होता है वो ट्रिक करने के काम आता है, आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है. क्या, एक वर्ड यूज होता है जीरो करेक्शन. सब लोग ध्यान देंगे, जीरो करेक्शन करके एक वर्ड यूज होता है. जीरो करेक्शन का मतलब होता है, जैसे हम एरर की बात करें, एरर मतलब कि आपने कुछ गलती कर दी है, देन यू मस्ट नीड टू रिमूव इट. तो अगर हमने एरर की है तो वी यूज दिस नेगेटिव साइन टू रिमूव इट. बट अगर आपने करेक्शन दिया हुआ है कि ओके डू अ करेक्शन ऑफ 20, तो करेक्शन मतलब आपको डायरेक्टली कर देना है जो भी है. तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है, कई बार एग्जाम में दिया जाता है करेक्शन एंड यू डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट इट, नहीं. तो ये दो वर्ड्स आपको ध्यान देना है. इफ जीरो एरर इज गिवन, सब्ट्रैक्ट इट. इफ जीरो करेक्शन इज गिवन, देन यू ऐड इट, बिकॉज इट इज ऑलरेडी द करेक्टेड पार्ट, कि बस आप डायरेक्टली ऐड कर दो, करेक्ट कर दो. तो अगर हम देखें कि पक्का दोनों चीजें मतलब देखो जस्ट सेम है, तो इससे क्लियर हो रहा है दैट जीरो करेक्शन एंड जीरो एरर आर सिमिलर, जस्ट अपोजिट इन द साइन. तो जहाँ पे पॉजिटिव जीरो एरर है, दैट मीन्स करेक्शन कैसा होगा, नेगेटिव होगा. और जहाँ पे नेगेटिव जीरो एरर है, वहाँ पे करेक्शन कैसे करना पड़ेगा, पॉजिटिव. और इसका मैंने बहुत सिंपल एग्जांपल बताया था कि आप ऐसे याद रख सकते हो कि एक बाइक है और आप अभी स्टार्ट करो और ऑलरेडी ये 5 किलोमीटर पर आवर रीडिंग दे रहा है विदाउट इवन मूविंग इट. तो जब आप एक्चुअल में 50 किलोमीटर की स्पीड पे जा रहे हो, दैट मीन्स दिस 50 इज नॉट रियल, योर रियल स्पीड इज 45 किलोमीटर पर आवर. So as you were getting the +5, zero error initially, that's why you need to subtract this 5 from your 50. तो इस तरीके से हम कर सकते हैं सब्ट्रैक्शन. तो ये जीरो करेक्शन का थोड़ा ध्यान देना है, मे बी एग्जाम में आपको करेक्शन दिया हो तो आपको एरर जैसे सब्ट्रैक्ट नहीं कर देना है. अब सोचो नेगेटिव जीरो एरर होगी तो क्या होगा. तो यहाँ पे तो एक नेगेटिव लगा हुआ है, और अगर आपने नेगेटिव की जीरो एरर रख दी, तो इसका मतलब फाइनल आंसर कैसा बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा. तो अगर नेगेटिव जीरो एरर होती है तो एडअप हो जाती है, और अगर पॉजिटिव जीरो एरर है तो सब्ट्रैक्टेड हो जाती है. यहाँ पे हमने देखा कि दिस वाज द पॉजिटिव जीरो एरर, दैट्स व्हाई इट वाज सब्ट्रैक्टेड. एंड इफ इट वाज नेगेटिव जीरो एरर, सो इट विल बी एडेड. तो जीरो एरर में अगर किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं. एनीवन, if someone has doubts regarding the zero error, they can ask. Okay, then we'll move to our next part, screw gauge. So screw gauge क्या है यार, स्क्रू गेज उससे भी ज्यादा प्रिसाइज है. मतलब मैं ये बताऊं कि जो वर्नियर था, वर्नियर में मेन स्केल से जो सेपरेटेड वर्नियर स्केल था उसमें कितने डिवीजन थे, 10, इसलिए उसका 1/10 आ रहा था. स्क्रू गेज में कितने डिवीजन होते हैं, स्क्रू गेज में डिवीजन होते हैं 100 डिवीजन. 100 डिवीजन होते हैं, इसलिए ये मेन स्केल का 1/100 तक देख सकता है. क्लियर. तो बात करते हैं स्क्रू गेज, देख लेते हैं थोड़ा सा क्या होता है. चलिए देखेंगे हम. ये एक फिगर है. आप यश हैव एनी डाउट, यू कैन आस्क. किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज विल डिस्कस दिस स्क्रू गेज. ओके, तो देखें. हाँ पूछे. स्क्रू गेज और वर्नियर स्केल का बेसिक डिफरेंस है. वही दिखा रहे हैं ना, अभी जस्ट दिखा रहा हूँ. वर्नियर एकदम डिफरेंट डिजाइन है. वर्नियर डिजाइन में क्या था, वर्नियर में मैंने बताया वर्नियर हम 3 तरीके से यूज कर सकते हैं. देखें, वर्नियर को मैंने बताया था, सब लोग एक बार देख लें कि वर्नियर कैसा था. अगर हम बात करें तो वर्नियर में 3 चीजें हम डिस्कस कर सकते हैं.
वर्नियर में बॉटम जॉज होते हैं और दो अपर जॉज होते हैं। जो बॉटम वाले जॉज होते हैं बड़े वाले, उनसे हम आउटर डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, आउटर। क्लियर? ये जो अपर वाले जॉज हैं, जैसे हमने इसे फ्लिप कर दिया तो ये इनसाइड वाली डायमीटर कैलकुलेट करने के काम आते हैं। और बॉटम पे जो एक पेग होता है, एक सिलेंड्रिकल पेग है, वो डेप्थ कैलकुलेट करने के काम आता है। तो वर्नियर के 3 तरीके से हम यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने स्क्रू गेज में। तो स्क्रू गेज की बात करें तो स्क्रू गेज यार ऐसे किसी ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं जा सकता है। तो स्क्रू गेज की जो फ्रेमिंग है वो थोड़ा सा देखिए कि यार ये किसी ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं जा सकता। होता क्या है, ये एक मेटल फ्रेम होता है। तो ये जो स्क्रू गेज है ये एक मेटल का फ्रेम है, ये यू फ्रेम है, और इस पे ये एक स्क्रू कनेक्टेड है डायरेक्टली इससे, सर्कुलर स्केल से। क्लियर? तो जब हम इस रैचेट को मूव करते हैं, रैचेट को रोटेट करते हैं, और ये सर्कुलर स्केल है वो एज अ स्क्रू आगे जाती है। एज अ स्क्रू जाने का मतलब क्या है, जैसे एक स्क्रू होता है और उसमें थ्रेड्स बने होते हैं, अगर आपने ध्यान दिया हो, एक हेड होता है और एक स्क्रू में थ्रेड्स बने होते हैं। तो जब हम स्क्रू ड्राइवर से इसे रोटेट करते हैं, तो हम जब इसे रोटेट करते हैं ये स्क्रू अंदर की तरफ पेनेट्रेट होता है, ऐसा शार्प एज होता है। तो दैट मीन्स ये एक पैटर्न है। स्क्रू गेज इसका नेम इसीलिए है बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्क्रू। as we rotate the screw like in this case this circular scale, this connected stud, ये क्या होता है, ये पास में आता है। तो इससे स्क्रू गेज से आप ऐसे सपोज एक लाइन ड्रॉ है, तो वर्नियर में आप क्या कर सकते थे, ऐसे दो जॉज को इस लाइन पे पॉइंट करके आप बता सकते थे क्या कि डिस्टेंस कितनी होगी। तो वर्नियर से हम फिजिकल डिस्टेंस और एक लाइन या 2D ऑब्जेक्ट्स के डिस्टेंस ही बता सकते थे। बट स्क्रू गेज से आप ऐसे डिस्टेंस नहीं बता सकते हो। स्क्रू गेज में आपको ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। तो स्क्रू गेज में जो भी ऑब्जेक्ट चाहिए, सपोज मुझे इसका थिकनेस चाहिए, तो इस थिकनेस को इन दोनों स्टड्स के बीच में रखेंगे, यहाँ से रोटेट करेंगे और स्टड से इसको पूरा पैक कर देंगे, और फिर हम रीडिंग लेंगे। तो अगर हम बात करें कि यहाँ पे स्केल कितनी टाइप की होती है, तो यहाँ 2 टाइप की स्केल होती हैं। एक जो यहाँ सेंटर पे बनी होती है इसको बोलते हैं मेन स्केल। तो मेन स्केल तो आपको पता ही है, ठीक है, ये मेन स्केल है। ये जो घूम रही होती है ये होती है अपनी सर्कुलर स्केल। और खास बात ये है कि सर्कुलर स्केल में कितने डिवीजन होते हैं, 100 डिवीजन। इसलिए ये कितना हो जाता है, 1 मेन स्केल के हमने 100 डिवीजन कर दिए। तो अगर मेन स्केल से 0.1 तक हम देख सकते थे सेंटीमीटर, तो हम अब स्क्रू गेज से कितना देख पाएंगे, 0.001 सेंटीमीटर, मतलब 100th डिवीजन भी देख सकते हैं। तो बात करते हैं क्या रियल में स्क्रू गेज कैसे दिखेगा। तो ये देख सकते हैं, ये फिगर रियल स्क्रू गेज का है। रियल स्क्रू गेज एग्जैक्ट ऐसा है होता है। ये मेटल का यू फ्रेम है जो हमने बात की, ये सर्कुलर स्केल है, और यहाँ से रैचेट के थ्रू आप इसे घुमा सकते हैं, सॉरी ये रैचेट के थ्रू आप इसे रोटेट कर सकते हैं। करते कैसे, बहुत थिन वायर, सोचो ये वायर कितना थिन है। इस वायर का अगर आपको थिकनेस चाहिए तो आप यहाँ से इस वायर को दोनों स्टड्स के बीच में फंसा दें, यहाँ से प्रेस करें, मतलब रोटेट करें, तो आप वैल्यू यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि रोटेट करके जब आप इसको फिक्स कर देंगे एग्जैक्ट, तो यहाँ ये जो सर्कुलर रीडिंग है ये मेन स्केल में कहीं ना कहीं पर आएगी। उस रीडिंग को हम बोलते हैं स्क्रू गेज की रीडिंग। तो स्क्रू गेज में रीडिंग कैसे लेते हैं वो देख लेते हैं। स्क्रू गेज में रीडिंग कैसे लेते हैं, स्क्रू गेज में रीडिंग लेते हैं कुछ इस तरीके से। क्या, जब हमने ऑब्जेक्ट वहां पर फिक्स किया हुआ है तो हम पहली चीज देखते हैं कि यार ये जो मेन स्केल है, यहाँ पे देखेंगे सब, ये जो मेन स्केल है यहाँ पर, इस मेन स्केल में ये वाला जो सर्कुलर है ये कहाँ पर आ रहा है, अभी ये सर्कुलर कहाँ पर आ रहा है। तो अगर मैं थोड़ा सा देखूं तो आप लोग इस चीज को देख सकते हो कि यार ये 0 है और ये 5, मतलब एक्चुअल 5 नहीं है। ये जो स्क्रू गेज है बहुत ही छोटा होता है, मतलब ये जो कॉलम है ना ये 1 सेंटीमीटर है, ये 1 mm है, 1 सेंटीमीटर नहीं है। तो इसका मतलब ईच कॉलम इज अ mm, ईच कॉलम इज अ mm। तो ये कौन सा नंबर आ गया, 7 नंबर आ गया। तो मतलब रीडिंग कितनी हो गई, 7 mm। और यू कैन राइट रीडिंग 7 mm के जगह पर अभी क्या लिख सकते हैं, 0.7 सेंटीमीटर।
अब बात आती है फिर क्या, सर्कुलर स्केल की रीडिंग। जैसे वहां पे हम प्लस करते थे वर्नियर, यहाँ पे हम करेंगे सर्कुलर स्केल। देखो सर्कुलर स्केल की रीडिंग कैसे देखना है, तो दिस लाइन इज कॉल्ड रेफरेंस लाइन, दिस लाइन इज कॉल्ड रेफरेंस लाइन, रेफरेंस। तो अब ये रेफरेंस लाइन जिस भी नंबर पे मैच करेगी सर्कुलर से, तो वो हो जाएगी सर्कुलर की रीडिंग। तो अभी देखो सर्कुलर की रीडिंग क्या है, 0 है, कुछ भी नहीं है, तो सर्कुलर की रीडिंग क्या है, 0 है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। सपोज अब हम ये फिगर देखते हैं, अब हम ये फिगर देखते हैं। मैं फिर से बता दूं कि स्क्रू गेज काफी छोटा होता है, तो ऐसा नहीं है कि स्क्रू गेज में सेंटीमीटर के कॉलम्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे कॉलम होते हैं विच आर इन mm। तो ये जो कॉलम है ये देखो 1 mm के थोड़ा सा आगे है ये कॉलम, ये जो हमारी सर्कुलर स्केल है ये देखो 1 mm के आगे है। तो हम ये बोलेंगे कि यार मेन स्केल की रीडिंग है 1 mm और हम लिखते हैं सेंटीमीटर में, सो लिखेंगे हम 0.1 सेंटीमीटर। देन सर्कुलर की रीडिंग, सर्कुलर की रीडिंग कैसे देखते हैं, ये रेफरेंस लाइन, ये रेफरेंस लाइन किस कॉलम से एग्जैक्टली मैच हो रही है। तो अगर मैं देखूं तो ये रेफरेंस लाइन 30 से जस्ट आगे 31 से मैच हो रही है, तो मेन स्केल तो हो गया ये 0.1 मेन स्केल। सर्कुलर स्केल कितना हो जाएगा 31, ये होगा सर्कुलर स्केल। और मैंने बताया हमें इनटू कराना पड़ेगा हमारे किससे, लीस्ट काउंट से, तो आंसर आ जाएगा 0.131 सेंटीमीटर। सो ये वो तरीका है जिससे हम स्क्रू गेज का भी हम डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर एवरीवन, स्क्रू गेज का सबको यार रीडिंग लेना समझ में आया कि स्क्रू गेज का रीडिंग कैसे ले सकते हैं। स्क्रू गेज प्रॉपरली ऐसे दिखता है, हमें कुछ भी ऑब्जेक्ट, सपोज हमने एक वायर रखी थी, तो हमने ये वायर रखी और इस सर्कुलर स्केल को रोटेट कराया, जैसे ही हमने इस रैचेट को रोटेट कराया ये स्केल आगे गई, और जैसे ही इसने इसे कंप्रेस किया, इसे कंप्लीटली कंप्रेस किया, तो ये पार्ट आगे आते हुए कहाँ तक आ गया, यहाँ पर आ गया, मतलब 0.1 से जस्ट थोड़ा सा आगे है। तो हमें पता चला कि मेन स्केल जो रीडिंग होगी वो हो जाएगी 0.1, और हमें सर्कुलर की तो हम देखते हैं कि रेफरेंस से क्या मैच करेगा। तो मुझे लगता है कि स्क्रू गेज की रीडिंग लिखना भी सबको आ गया होगा। पता है गलती सिर्फ हो सकती है mm से, हो सकता है ऑप्शन में आंसर सेंटीमीटर में ना हो mm में हो, तो थोड़ा ध्यान देना है। अगर 0.131 सेंटीमीटर को mm में चाहिए तो यार 10 का मल्टीप्लाई, दैट मीन्स 1.31 mm, ये आंसर। अच्छा सर हाँ पूछे। सर वो सर्कुलर स्केल है ना, हाँ उसके अगर बीच में आ रहा है तो लाइन वो, तो इसका मतलब हुआ कि अब तो आप इंस्ट्रूमेंट के मतलब प्रिसीजन लेवल से भी पीछे चले गए। मतलब अगर आंसर 31 है तो आप डिजिट बता रही है, अब आप सोच रहे हो सपोज उन दोनों के भी बीच में है, तो इसका मतलब आंसर कुछ ऐसा है 0.131, और इसके बाद कोई डिजिट आएगा, कोई डिजिट आएगा जो हमें नहीं पता। सो दैट मीन्स दैट इज बियॉन्ड आवर स्कोप ऑफ स्क्रू गेज। स्क्रू गेज से हम सिर्फ 3 डिजिट तक ही बता सकते हैं, तो क्या करना पड़ेगा आपको, फिर गेस करना पड़ेगा कि क्या वैल्यू होगी। क्लियर, तो जिसके नियरर लगे आप गेस कर सकते हैं, बट दैट विल नॉट बी अ प्रिसाइज आंसर। डन। सर हाँ यस सर। वो कितना रोटेट करना है वो कैसे समझेगा? कितना रोटेट कर, ये फिक्स करना है ना आपको। ये वायर यहाँ पर देखें, जो ऑब्जेक्ट मैंने बताया स्क्रू गेज से आप ऐसे लाइन की डिस्टेंस नहीं बता सकते हो, आपको फिजिकल ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। तो देखो यहाँ पर मैंने एक वायर ऐसे लगा रखी हुई है, ये वायर यहाँ पर है, तो आपको इसे तब तक रोटेट करना है जब तक कि ये इस वायर को ऐसे पकड़ नहीं लेता, ग्रिप में नहीं आ जाता ये वायर। तो ये ग्रिप में जब आ जाएगा दैट मीन्स ये आपका कंप्लीट पार्ट हो जाएगा। अच्छा, अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे, देख लूं मैं, मुझे पता है कुछ स्टूडेंट का डाउट होगा, सर ये तो बहुत थिन वायर है, और सोचो किसी ने बहुत कंप्रेस कर दिया, ये वायर ही मतलब कंप्रेस हो गई तब क्या होगा। तो जो इंस्ट्रूमेंट डिजाइन करते हैं वो आप जैसे स्टूडेंट्स का थोड़ा सा ध्यान रखते हैं क्या, कि कभी भी स्क्रू गेज इस रफ पार्ट से नहीं घुमाया जाता है। बहुत सारे लोग इस रफ पार्ट से घुमाते हैं, इस रफ पार्ट से नहीं घुमाया जाता है, स्क्रू गेज घुमाया जाता है इस रैचेट से। अब रैचेट क्या होता है, ये रैचेट में एक मैकेनिज्म होती है गियर शिफ्ट की मैकेनिज्म, उसमें जब आप इसके एकदम पास पहुंच जाते हैं, एकदम पास पहुंच जाते हैं, तो
जैसे ही आप ज्यादा फोर्स लगा के इसे कंप्रेस करने का ट्राई करते हैं इस वायर को, ये रैचेट स्लिप होने लगता है और साउंड क्रिएट करने लगता है। इससे पता चल जाता है कि बेटा अब ज्यादा फोर्स मत लगाओ, ऑलरेडी ये फिक्स हो गया है। तो ये रैचेट की खास बात है। देख लें सिस्टम कैसे दिखता है। अंदर एक गियर सिस्टम होता है इस तरीके का, और रैचेट इस गियर में फिक्स होता है। मतलब रैचेट के जो गियर हैं वो ऐसे इस तरीके से इसके ऊपर फिक्स होते हैं, बट बहुत ऊपर ही फिक्स होते हैं। तो जैसे ही आप ज्यादा फोर्स लगाते हैं तो ये जो गियर है ये इस गियर के ऊपर स्लिप कर जाता है, तो एक रफ सा साउंड आता है। स्लिप कर जाने का मतलब ये कि आपने लिमिटेड फोर्स से ज्यादा फोर्स लगा रहे हो। तो इस जैसे ही रैचेट उसमें स्लिप करना शुरू होता है, एक साउंड आने लग जाता है। आपको समझ जाना है कि अब ज्यादा प्रेस नहीं करना है, वरना पता चला देख रहे हो 0.131 सेंटीमीटर की वायर है और आपने उसे कंप्रेस करके और छोटा कर दिया। तो इसलिए वो मैकेनिज्म बनाई जाती है। क्लियर? तो ये आई गेस प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोग को। तो मेन स्केल ध्यान देना है, मेन स्केल mm में होती है। ये सब लोग को मैं फिर से बोल दूं कि ये जो पूरा स्क्रू गेज होता है ना, स्टैंडर्ड स्क्रू गेज, ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा 2.5 सेंटीमीटर ही होता है। ऐसा बहुत बड़ा स्क्रू गेज नहीं होता है। क्लियर? तो ये स्क्रू गेज बहुत ही छोटा होता है, 2.5 सेंटीमीटर का, एंड ईच कॉलम इज लाइक अ mm। ओके, सो आई गेस ये वैल्यू यहाँ पे क्लियर हुई। अब देखिए यार, इसमें भी जीरो एरर कॉन्सेप्ट है। क्या? ये वायर रिमूव कर दो। इसमें जीरो एरर कॉन्सेप्ट क्या है? ये वायर आप रिमूव कर दो और इन दोनों स्टड्स को एकदम ज्वाइन करो, तो आंसर क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। बिल्कुल सही है। अगर जीरो आ गया दैट मीन्स देयर इज नो एरर। बट सोचो जीरो नहीं आया, मतलब आप इस फिगर में फोकस करेंगे। सब लोग देखें इस फिगर को कि बार बार ध्यान दें, ये जो रैचेट रोटेट किया जाता है ये हमेशा कैसा किया जाता है? एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर? तो जब आप रोटेट कर रहे हैं, आप देखें जब आपने पूरा फिक्स कर दिया, जब आपने पूरा फिक्स कर दिया तो बिना कुछ किए, आप फील करें, बिना कुछ किए ये रीडिंग कितनी दे रहा है? 11। बिना कुछ किए रीडिंग क्या दे रहा है? 11। अभी आपने कुछ नहीं किया और ये रीडिंग क्या दे रहा है? 11। तो इसका मतलब आप लोग समझ गए ना यार, क्या? कि देयर इज अ पॉजिटिव एरर ऑफ 0.011 सेंटीमीटर और 0.11 mm। तो ये मुझे लगता है आप लोग को क्लियर हो गया होगा ये चीज, कि अगर हमने कुछ भी नहीं किया और फिर भी एक रीडिंग आ रही है पॉजिटिव में, तो वो क्या टाइप की हो गई? पॉजिटिव एरर हो गई। क्लियर? तो अभी हमने कुछ नहीं किया और हमारा आंसर ऑलरेडी 0.011 आ रहा था। तो जब फाइनल आंसर आएगा इस वैल्यू को हम उससे रिमूव कर देंगे। तो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव जीरो एरर। सबको क्लियर रहेगा? इफ यू आर गेटिंग सर्टेन वैल्यूज एज दिस पॉजिटिव 0, 10, 20, 30, दैट मीन्स दीज आर पॉजिटिव वैल्यूज। अब बात कर लेते हैं नेगेटिव वैल्यूज, मतलब थोड़ी सी एरर की बात कर लेते हैं कि अगर हम एक पॉइंट ध्यान दें तो देखो इसमें क्या हुआ है, इसमें यार जीरो ऊपर चला गया है। अगर हम देखें जीरो ऊपर चला गया, इसका मतलब हम रीडिंग में पीछे आ चुके हैं। हम रीडिंग में आ चुके हैं 90 पे। तो अब 90 का मतलब ये नहीं समझ जाना है कि अरे सर 90 की एरर हो गई। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है कि एरर इतनी बड़ी भी नहीं होती, इतना खराब इंस्ट्रूमेंट भी आप लोग यूज नहीं कर रहे हैं। तो जब आप ऊपर की तरफ रीडिंग जाते हैं 10, 20, 30, 40, तो इसका मतलब रीडिंग क्या हुई? पॉजिटिव एरर। और जब हम नीचे आ रहे हैं तो 90 पे आ गए, तो 90 की पॉजिटिव एरर मत कर देना। आंसर क्या होगा? निगेटिव एरर ऑफ, हमें पता है 90 है मतलब 100 से कितना दूर है? 10। एरर कितनी हो जाएगी? -10 -0.010 centimeter, because these are in 2 digits. So that's how we can take the zero errors. इस जीरो एरर में किसी को कुछ डाउट है तो बता सकते हैं। जीरो एरर में कुछ डाउट? अच्छा, अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे, मुझे पता है पक्का, अगर नहीं सोच रहे हो तो सोच लो। क्या? सोचो वैल्यू अगर 50 के आसपास आ जाए तो क्या लेंगे? पॉजिटिव 50 लेंगे या नेगेटिव 50 लेंगे? सोचे। मैंने जैसे इसे बताया, अब आप इसे घुमाते घुमाते सपोज आपने 40 ले लिया तो पक्का प्लस का 40 है। सपोज 70 आ गया तो आप समझ गए कि 70 मतलब बैक साइड से आ रहा होगा, मतलब कितना? माइनस का 30 माइनस है। का। वेरी गुड। बट सोचो 50 के आसपास आ गया तब क्या करोगे? तब तो कंफ्यूजन है। तो तब थोड़ा सा सोचेंगे कि हाउ यू आर रोटेटिंग द स्केल।
क्लियर? तो पक्का एग्जामिनर मतलब ऐसा पागल नहीं है कि आपको कुछ भी रैंडम सा क्वेश्चन दे देगा। एग्जामिनर आपका स्किल्स अगर चेक करना चाहता है तो वो ये बताएगा कि रोटेट कैसे करना है। तो एकदम ऐसे फील करके रखना है। अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया, देखें सब लोग, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया तो मतलब 0 के बाद क्या आया होगा, 10, 20, 30, 40, 50। अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया मतलब क्या आया है आपका, पॉजिटिव की एरर आई है। और सोचो अगर स्केल को ऐसे ऊपर की तरफ रोटेट किया मतलब लाइक दिस, देखें लाइक दिस अगर स्केल रोल किया है मतलब क्लॉकवाइज रोल किया है तो पक्का पीछे तरफ से आए हुए हैं। पीछे तरफ से आया मतलब 0, 90, 80, 70 ऐसे करके आए हैं मतलब माइनस का 50 हो गया। तो ये कॉमन सेंस सबको समझ आया ना कि अगर आप पॉजिटिव तरफ से घूम के आ रहे हैं 0, 10, 20, 30, 40 तो वो पॉजिटिव एरर है, और अगर पीछे तरफ से आ रहे हैं देन इट इज नेगेटिव एरर। तो मुझे लगता है स्क्रू गेज में ये सारी चीजें क्लियर होंगी कि स्क्रू गेज में क्या क्या देख सकते हैं। ये हमने एक फिजिकल रिप्रेजेंटेशन बनाया और स्क्रू गेज में सारी चीजें आपको एरर बता दी। अब हम अपनी नोट्स में से देख लेते हैं चीजों को स्क्रू गेज में। तो स्क्रू गेज में कुछ वर्ड्स डिफाइन होते हैं, वो वर्ड्स हमें भी डिफाइन करने पड़ेंगे। नंबर 1 पिच। तो पिच है क्या, आप समझे पिच क्या चीज है। देखें, इट इज अ लेंथ कवर्ड बाय सर्कुलर स्केल ऑन द मेन स्केल आफ्टर वन फुल रोटेशन। मतलब जो मैंने फिगर बनाया कि यार वो जो सर्कुलर स्केल है हम उसे जब रोटेट करते हैं तो जब वो पूरी 100 डिवीजन, जो सर्कुलर स्केल होती है उसमें कितने डिवीजन है, 100 डिवीजन, जब वो 100 डिवीजन रोटेट होती है तो कितना आगे मूव हो जाती है। तो 100 डिवीजन में कितना रोटेट होगा उस चीज को हम बोलते हैं क्या, उसकी पिच। मतलब वन फुल रोटेशन से आगे कितना जाएगा उस चीज को हम बोलते हैं क्या, पिच। तो हम एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसका मतलब पिच क्या चीज है, पिच है रियल में अगर हम देखें पिच क्या है तो पिच है ये स्क्रू, ये जब हम स्क्रू पूरा घुमाते हैं तो इसमें जो थ्रेड लेंथ होती है वो पिच का काम करती है कि आगे कितना जाएगा। तो जब हम इस पूरी सर्कुलर स्केल को घुमाते हैं तो हम देखते हैं कि जब हमने इस पूरी सर्कुलर स्केल को वन रोटेशन घुमाया तो ये मेन स्केल में कितने डिवीजन आगे आ गया, उस चीज को पिच बोलते हैं। इन वन फुल रोटेशन वो कितना आगे आ गया उस चीज को बोलते हैं पिच। तो पिच क्लियर है कि वन फुल रोटेशन में कितना आगे आ गया। इसका मतलब है वन रोटेशन में कितने डिवीजन थे, 100। तो इससे ये पता चलता है कि जो अगर आप 1 mm आगे आ गए हो इसका मतलब ये है कि वो जो उसके 100 डिवीजन है वो वर्थ कितने हैं, 1 mm के। तो इस तरीके से हम निकालते हैं लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। अगर हमें लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज चाहिए तो सब लोग ध्यान दें क्या होगा, जो उसकी पिच है मतलब जो वो एक फुल रोटेशन में आगे जाता है डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल। तो मैंने बताया कि स्टैंडर्ड में 100 होते हैं बट कोई डिफरेंट सर्कुलर भी तो बना सकता है ना। सपोज उसमें 50 है, किसी में 200 है, तो विल डिपेंड कि कितना उसमें नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन है। तो लीस्ट काउंट ऑफ सर्कुलर का भी हमें याद रखना है। तो ये पैटर्न है। अगर हम लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर की बात करें तो वो था 1 वर्नियर 1 मेन स्केल माइनस 1 वर्नियर, और फिर हम 1 वर्नियर को फाइंड करते हैं। सेम चीज यहाँ पे है। यहाँ पे लीस्ट काउंट किस तरीके से डिफाइन है, यहाँ पे डिफाइन है कि आपको पिच निकालना है। पिच क्या है, वन फुल रोटेशन में कितना आगे जाओगे आप मेन स्केल में। तो मैंने सपोज क्वेश्चन दिया क्या कि देयर इज अ सम डिफरेंट स्क्रू गेज इन विच after 5 rotation it goes only 2 mm, मतलब बहुत स्लो घूम रहा है वो। तो इसका मतलब ये है कि आफ्टर 5 रोटेशन इट गोज टू 2 mm। तो आप क्या लिखोगे, आफ्टर 1 रोटेशन हाउ मच इट विल गो, इट विल गो 2/5 mm। तो 2/5 mm means 0.4 mm। so this will be its pitch, and if there are 100 divisions, 100 डिवीजन आर देयर इफ, सो इसका मतलब लीस्ट काउंट कितनी हो जाएगी, लीस्ट काउंट विल बी कि 0.4 mm के हमने कितने डिवाइड कर दिए, हमने 100 डिवाइड्स कर दिए। सो इसका मतलब लीस्ट काउंट क्या होगी, 0.004 mm। तो ये सबको क्लियर याद रखना चाहिए कि किस तरीके से हम स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि एग्जाम में एक डिफरेंट भी आ सकता है आपको। फिर हमने बात की कि स्टैंडर्ड स्क्रू गेज में क्या होता है। तो स्टैंडर्ड स्क्रू गेज एकदम क्लियर है। स्टैंडर्ड स्क्रू गेज में 100 डिवीजन होते हैं और हम जब स्क्रू को फुल 1 रोटेशन दे देते हैं तो वो कितना आगे जाता है, 1 mm आगे जाता है और 0.1 सेंटीमीटर बोल सकते हैं
दैट इज इट्स पिच। तो इसका मतलब उसका फाइनल लीस्ट काउंट क्या आ जाएगा 0.01 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 100, तो 0.00 सेंटीमीटर और mm में 0.1। रीडिंग लेने का पैटर्न वही है जो मैंने बताया, क्या पहले देखो मेन स्केल में और फिर देखो सर्कुलर स्केल में कितना रीडिंग। डन। तो अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, आप लोग रीड करें और मैं फिर उसे एक्सप्लेन करूंगा। रीड करते हैं ये क्वेश्चन। A screw gauge gives following reading when used to measure the diameter of a wire। मतलब एक इनिशियल रीडिंग है, एक डायमीटर ऑफ वायर हमें बतानी है। तो बेटा मेन स्केल की रीडिंग क्या है, वो है 0, मतलब मेन स्केल में वो अभी 1 mm तक भी नहीं पहुंचा है, मेन स्केल में अभी वो 0 ही है। बट द सर्कुलर स्केल रीडिंग्स आर 52 डिवीजन। given that 1 mm on the main scale corresponds to the 100 division of circular scale। तो मतलब ये तो हमारा स्टैंडर्ड वाला हो गया ना कि 100 डिवीजन का जो सर्कुलर स्केल है उसे घुमा के हम आगे कितना जा रहे हैं 1 mm। तो इसका मतलब लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा, लीस्ट काउंट सिंपल है, 1 mm के कितने डिवीजन करने हैं हमें 100 डिवीजन। 1 mm हमारा लीस्ट वो है पिच, पिच डिवाइडेड बाय 100 0.01 क्या हो गया mm, ये हो गया हमारा वैल्यू। इसका मतलब आंसर कितना आ जाएगा, मेन स्केल तो 0 mm है एंड ये कितना है 52 इंटू हमारा लीस्ट काउंट, तो मतलब 0.52 mm। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 0.52 mm। और मैं फिर से बार बार बताता हूँ कि मे बी की आंसर mm में आपको नहीं दिख रहा है तो आपको आंसर करना पड़े सेंटीमीटर में, तो आप आंसर सेंटीमीटर में भी कर सकते हैं। उसके बाद कुछ रैंडम सी एरर है, मैंने ऑलरेडी बताई थी, फर्स्ट लेक्चर में अपने बताई थी कि पैरेलैक्स एरर क्या होता है। पैरेलैक्स एरर होता है, पैरेलैक्स एरर क्या है, पैरेलैक्स एरर है सपोज हम एक ऑब्जेक्ट को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देख रहे हैं, देन वी गेट द एक्चुअल वैल्यू। और अगर हम परपेंडिकुलर नहीं है किसी एंगल पे देख रहे हैं तो इसका मतलब हमें एक डिफरेंट वैल्यू दिख सकती है अगर हम एक डिफरेंट एंगल से देखेंगे। तो इसलिए हम बोलते हैं कि कभी भी एग्जाम में रीडिंग ले तो ऐसे कहीं रैंडम बैठ के मत लो, प्रॉपरली उस स्केल के वर्टिकल डायरेक्शन में फेस करके आपको देखना होता है एरर। फिर बात की थी हमने बैकलैश एरर। बैकलैश एरर क्या है, बैकलैश एरर देख लेते हैं। बैकलैश एरर बताई, बैकलैश एरर है ये रिलेटेड है, बैकलैश एरर जो वो किससे रिलेटेड है, जैसे मैंने बताया कि जब हम एक रैचेट रोटेट करते हैं तो वो स्लिप करने लगता है अगर ज्यादा टाइट हो जाए, क्लियर। तो ये किससे डिपेंडेंट है, उस रैचेट से डिपेंडेंट है कि अगर वो रैचेट स्लिप होना बंद कर दे, मतलब सोचो बहुत पुराना हो गया है, एकदम रस्ट लग गया है, उसमें मेटेलिक होता है, तो अगर रस्ट लग गया तो पता चला आपका रैचेट भी खराब हो गया, उसमें ग्रीस ऑयलिंग नहीं है, तो वो जो रोटेटिंग नॉब है हमारा रैचेट वो स्लिप अगर नहीं होगा तो फिर वो तो जर्क टाइप की मोशन आ जाएगी ना, तो उस मोशन को क्या बोलते हैं बैकलैश एरर। मतलब बैकलैश एरर रिलेटेड है स्क्रू गेज से और उसके रैचेट की स्मूथ मोशन से रिलेटेड है। अगर वो रफ हो रहा है थोड़ा सा, मतलब रैंडम ग्रिप आ रही है, तो उस टाइप के एरर को बोलते हैं बैकलैश एरर। चले, तो मैं चाहता हूँ अब ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन सब लोग सॉल्व करें और चैट बॉक्स में आंसर बताएंगे मुझे। ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करें सब लोग, चैट बॉक्स में आंसर बताएं। क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, द लीस्ट काउंट ऑफ अ स्क्रू गेज इज 0.001 सेंटीमीटर। द रीडिंग ऑन द मेन स्केल इज 5 mm with 25 division on the circular scale. If it has a zero error of this, then find the actual reading। और ये क्वेश्चन JEE 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। Okay, good. So I'm start getting answers. Okay, good, correct. आर्य सूर्यवंशी करेक्ट, यार आदित्य करेक्ट। आप लोग ध्यान दें विद यूनिट आंसर देना है। शिव प्रसाद नॉट करेक्ट, विद यूनिट आंसर देना है यार। आंसर आप किस में दे रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट वाइज गलत आंसर, गलत आंसर। प्रणव करेक्ट आंसर, आयुष करेक्ट आंसर, सॉरी प्रणव नॉट करेक्ट, विल सी। यार देखें, चले आंसर नहीं करें अभी कोई,
देख लिया मैंने काफी लोग के आंसर्स। दो प्रॉब्लम्स मुझे मोस्टली आंसर्स में दिखे। आंसर देखने का पर्पज है कि मोस्टली स्टूडेंट किस टाइप के एरर कर रहे हैं वो हमें फोकस करना होता है। तो मोस्टली स्टूडेंट ने कुछ स्टूडेंट्स ने ये मिस किया हुआ है, ये 5 mm मेन स्केल का। यार mm में है क्वेश्चन और देखो बाकी सारी चीजें सेंटीमीटर में है, तो हमें भी आंसर किस में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, सेंटीमीटर में। तो ये जो मेन स्केल का 5 mm है, मतलब सेंटीमीटर में कितना होगा, 0.5 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं 25 डिवीजन है, तो हमें पता ना आगे के 2 डिजिट है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा रीडिंग, 0.525 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा रीडिंग, फाइनल रीडिंग। अब बात करते हैं देयर इज अ एरर ऑफ दिस। तो ये देखो एरर क्या है, नेगेटिव, और मैंने बताया हुआ है कि नेगेटिव एरर का मतलब क्या है। नेगेटिव एरर का मतलब है कि वो ऐड होगी। ऐड कर। वेरी गुड। सो बिकॉज हमारी ट्रू वैल्यू, सब यहाँ पे देख के, हमारी ट्रू वैल्यू होती है ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस जीरो एरर, तो विद साइन रखना होता है जीरो एरर। सो माइनस ऑफ, अगर माइनस 0.004 करेंगे सेंटीमीटर, तो ये माइनस माइनस क्या होगा, एड अप हो जाएगा ट्रू वैल्यू में। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, हमारा आएगा 0.529 सेंटीमीटर। कुछ स्टूडेंट ने आंसर किया है 0.521, मतलब ये माइनस कर दिया डायरेक्ट। ध्यान दें जीरो एरर अगर पॉजिटिव वाली है तो माइनस हो जाती है, और अगर नेगेटिव वाली है तो वो एड अप हो जाती है फाइनल वैल्यू में। तो इस चीज का भी आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना। तो 0.529 आंसर होगा। क्लियर, ठीक है। तो अब तो हम शीट के कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। शीट जो हमने लास्ट लेक्चर में दी हुई थी, मैंने ग्रुप पे डाला हुआ है फिजिक्स प्रैक्टिस शीट। ओके, सो प्रैक्टिस शीट में पहले क्वेश्चन यूनिट, डायमेंशन, एरर, ये सारे क्वेश्चन है। तो पहले कुछ क्वेश्चन हम इंस्ट्रूमेंट के कर लेते हैं, फिर देखेंगे कि उसमें क्या दिक्कत आ रही है। तो मुझे लगता है यूनिट्स के क्वेश्चन आप लोगों ने स्टार्ट कर दिए, बट फिर भी पहले हम किसको डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा लास्ट के एक्सपेरिमेंटल स्किल को अभी देख लेते हैं, जिससे हमें क्लियर हो जाए कि आपको समझ में आया या नहीं आया, आप लोग को सॉल्विंग समझ में आया कि एक्सपेरिमेंट्स कैसे देखने हैं या नहीं, वो चीज़। चले एक्सपेरिमेंटल स्किल के बारे में देखते हैं। तो ये क्वेश्चन सब लोग सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 185 सब लोग ट्राई करें और आंसर करें, क्या ऑप्शन आएगा। 185 सॉल्व करें। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। बी। बी, ओके गुड, बी। ठीक है। चले तो हम यहाँ बी। पे आंसर्स देख सकते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। तो हमें पता है बी। 50 डिवीजन है और हमें सेंटीमीटर में आंसर देना है, तो आंसर होगा बी वाला। बहुत सारे स्टूडेंट को लगने लगता है कि ये होगा, ए आंसर नहीं होगा। ए आंसर नहीं है, ए इनकरेक्ट है। आंसर होगा बी, बिकॉज हमें सेंटीमीटर में देखना है। चले क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करें। 1 तो मैंने जस्ट अभी सॉल्व कर दिया है। आई नीड यू टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। कोई भी बोल के आंसर नहीं बताए, इट्स बेटर यू सेंड दोज आंसर इन द चैट बॉक्स।
ओके वेरी गुड, बहुत सारे स्टूडेंट्स का आंसर सही है। तो हमें पता है यार स्पेरोमीटर क्या है, बिल्कुल स्क्रू गेज जैसा ही होता है ये भी। तो बहुत ही क्लियर आंसर है। हमें क्या फोकस करना है, स्पेरोमीटर हैज अ लीस्ट काउंट ऑफ दिस, मतलब यार उसकी लीस्ट काउंट दे दी है और बोला इसके हेड में जो हेड स्केल है उसमें 200 डिविजन्स हैं और आपको बताना है डिस्टेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव थ्रेड्स ऑफ स्पेरोमीटर। मैंने बताया कि उसके थ्रेड के बीच की जो डिस्टेंस होती है किसी भी स्क्रू की, किसी भी स्क्रू की जो वो जो थ्रेड डिस्टेंस होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, पिच। तो इसका मतलब इसमें बहुत सिंपल सी बात है, पिच पूछा है। अच्छा, कुछ लोग को समझ में नहीं आया कि पिच पूछा है, तो यार गिवन है आपको लीस्ट काउंट, गिवन है सर्कुलर स्केल के डिवीजन, तो पिच के फॉर्मूले में ही तो होगा ना यार। लीस्ट काउंट इज इक्वल टू क्या होता है, पिच डिवाइडेड बाय सर्कुलर स्केल डिवीजन। ये फॉर्मूला भी हमने बताया कि लीस्ट काउंट क्या होती है, पिच को देख लो कितने पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो लीस्ट काउंट है 0.5 mm, पिच हमें पूछा हुआ है तो पिच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लीस्ट काउंट इनटू यूएसडी। सो लीस्ट काउंट है 0.005 इनटू 200 डिविजन्स। तो सॉल्व करें, 200 से मल्टीप्लाई किए तो आ गया क्या, 1। अब हमने कुछ भी चेंज नहीं किया तो ये जो भी यूनिट में आंसर रहा होगा, आंसर उसी यूनिट में आया होगा, मतलब आंसर करेक्ट है, सी आंसर। तो कुछ लोगों ने आंसर ए दिया है 1 सेंटीमीटर, बेटा हमने यहाँ पे कन्वर्ट कुछ किया ही नहीं है। अगर हमें क्वेश्चन एमएम में दिया था तो अभी देखो हमारा आंसर भी तो एमएम में आएगा और हमने कुछ भी चेंजेस नहीं की है। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है। 187 ट्राई करें, 187 ट्राई करें सब लोग। विश्वराज 6 डिग्री, यार यहाँ पे जो ऑप्शन है वो ऑप्शन दे, यहाँ पे जो ऑप्शन है। अच्छा, डिग्री और मिनट में एक रिलेशन देख ले, मे बी कुछ लोगों को ये वैल्यूज हो सकता है नहीं पता हो। देखें कुछ लोग को मे बी ये डिफरेंस नहीं पता है, मैं उनको बता दूं। ये नोट कर लेंगे या माइंड में याद रखेंगे कि जो क्लॉक होती है, क्लॉक के अकॉर्डिंग हम अपने एंगल की भी यूनिट रखते हैं। मतलब बात करते हैं जैसे 1 डिग्री, तो अगर हम 1 डिग्री की बात करें तो वो होता है 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। इसको सिंगल डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब है डिग्री और इसका मतलब है मिनट, और ये किसके यूनिट है, एंगल के यूनिट है। तो आप लोग को ध्यान देना, एंगल के कुछ यूनिट डिग्री और मिनट भी होते हैं। सो 1 डिग्री मतलब 60 मिनट्स। अच्छा, दूसरा 1 मिनट डैश से किसको रिप्रेजेंट करते हैं, 1 मिनट। 1 मिनट इज इक्वल टू होता है 60 डबल डैश मतलब सेकेंड। तो ये है मिनट, दैट 1 मिनट इज इक्वल टू ये है 60 सेकेंड। सो हाउ मच सेकेंड। ये दो यूनिट आपको याद रखने हैं, तो आंसर्स आप उसके अकॉर्डिंग ही करेंगे। Okay, so someone answered A, someone answered D. चलो देख लेते हैं यार, ये अगर हमें क्लियर है ये वाला पार्ट, तो थोड़ा सा हम इस चीज को देखते हैं। क्या कि क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, पहले मार्क कर लेते हैं। क्या इन एन एक्सपेरिमेंट द एंगल्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेजर्ड यूजिंग अ सर्कुलर स्केल। ठीक है, अब डेटा सुनना,
29 डिवीजन ऑफ मेन स्केल कोइंसाइड विद 30 डिवीजन ऑफ वर्नियर। मतलब ये पक्का केस हो गया कि वर्नियर और मेन में कितने कोइंसाइड कर रहे हैं, और हमें अब बताना क्या है, लीस्ट काउंट बताना है। यार समझाया था, ये तो क्लियर है ना, इसे मैं हटा देता हूं। तो अगर हम बात करें इसमें कि लीस्ट काउंट क्या होता है, तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला सबको क्लियर था यार। लीस्ट काउंट इज इक्वल टू क्या था, लीस्ट काउंट था 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। और क्या समझाया था, ढूंढ के लाओ कि 1 वर्नियर का वर्थ कितना है। फिर से जरूरी नहीं, यहाँ पे देख ले, अगर आपने इसको भी याद किया ना तो बहुत लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाएगा। क्या होता है लीस्ट काउंट, याद रखो लीस्ट काउंट कैसे निकाली थी हमने, मैंने फिगर बना के बताया था कि यार अगर मेन स्केल में डिवीजन कुछ इतना बड़ा है और हमारा वर्नियर का जो डिवीजन है मैंने बताया था अगर वो इतना छोटा है, तो हम इनडायरेक्टली इन दोनों वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करके ये वैल्यू गेस कर सकते हैं। सो ये बन जाती है हमारी लीस्ट काउंट 1 मेन स्केल माइनस 1 वर्नियर स्केल। अब ढूंढते हैं 1 वर्नियर स्केल कितना होता है, तो हमें क्वेश्चन में ढूंढना होता है कि वर्नियर कितना गिवन है। तो देखो क्या गिवन है, 30 डिवीजन ऑफ वर्नियर, मतलब 30 वर्नियर स्केल डिवीजन आर इक्वल टू 29 मेन स्केल डिवीजन। मतलब अब क्लियर हो गया ना, 1 वर्नियर का वर्थ कितना हो गया, 1 वर्नियर का वर्थ हो गया 29/30 मेन स्केल डिवीजन। डन। अब ये वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं, रख देते हैं 1 वर्नियर को, तो देखिए लिस्ट काउंट का आंसर क्या आ जाएगा। सो लिस्ट काउंट का आंसर आ जाएगा, लिस्ट काउंट विल बी 1 मेन स्केल 1/30 माइनस 1 मेन स्केल माइनस कितना 29/30 मेन स्केल, ये हुआ मेन स्केल डिवीजन। तो कितना आंसर आ गया, ये आ गया, माइनस किया 1 से तो आ गया 1/30 ऑफ मेन स्केल डिवीजन। अब देखो यार क्वेश्चन में गिवन होगा कि मेन स्केल कितनी है, क्योंकि हमारी वो नॉर्मल वाली स्केल तो है नहीं कि उसको हम 1 mm मान ले। तो क्वेश्चन में गिवन है द स्मॉलेस्ट डिवीजन इन द मेन स्केल इज हाफ डिग्री। हाफ डिग्री मतलब 1/2 डिग्री मान सकते हैं, ये लिखा है। So it is 1/30 into 1/2 डिग्री, डिग्री तो इसका मतलब ये हुआ 1/60 डिग्री। और हमने जस्ट अभी देखा है कि एंगल के कुछ और नए यूनिट होते हैं, वो होता है 1 डिग्री रिप्रेजेंट्स द 60 मिनट्स, क्लॉक आवर के टाइप में चलता है, और 1 मिनट मीन्स 60 सेकेंड्स। तो हमें पता है कि यार ये लिखा हुआ है डिग्री, डिग्री को मिनट में करना है तो क्या करना पड़ेगा, 60 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आंसर आ जाएगा मिनट्स में 1 मिनट। तो इस तरीके से हम आंसर कर सकते, समझ में आ गया होगा। ये 2 स्टेप प्रॉब्लम था। एक तो आपको क्वेश्चन का डेटा लिखना था कि हाउ मच वर्नियर इज इक्वल टू मेन स्केल, और लीस्ट काउंट का फॉर्मूला। यार किसी को इसमें कुछ भी डाउट हो तो बता सकता है, एनीवन, एनी डाउट, कोई दिक्कत नहीं यार, आराम से पूछो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सीखना है यार, अगर सीख गए तो बहुत बेस्ट होगा, तुरंत सारे एग्जाम्पल, कितने भी टफ से टफ एग्जाम्पल कर लोगे। क्राइटेरिया क्लियर है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, द क्राइटेरिया फॉर लीस्ट काउंट इज 1 मेन स्केल माइनस वर्नियर, और ढूंढना है कि व्हाट इज द वर्थ ऑफ वर्नियर स्केल। बस ये 2 सिंपल स्टेप है। सो आई गेस अगर ये क्लियर है आप लोग को, सो आपको क्वेश्चन नंबर 188 स्टार्ट करना है। सो स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 188। मैं अभी रिमूव नहीं कर रहा हूँ इस सेक्शन को, यहीं पे दिखा रहा हूँ जिससे आपको एक हेल्प मिले कि 188 को कैसे कर सकते हैं। सर हाँ, एनी डाउट? सर आपने वो 1/30 मेन स्केल को इक्वेट किससे किया है, वो 1/, बेटा आपका वॉइस बहुत फेड हो रहा है, थोड़ा लाउड बोलेंगे। इससे माइनस क्या पूछ रहे हैं, एक बार लाउड थोड़ा बोले। हेलो सर, हाँ, वो लीस्ट काउंट का जो लीस्ट काउंट का जो फॉर्मूला है यहाँ पर हमारे पास 1 मेन स्केल माइनस 1 वर्नियर, उसमें पहले हमने क्वेश्चन से ढूंढा व्हाट इज द वर्थ ऑफ वर्नियर, बिकॉज वर्नियर ही हमें ढूंढना है कि वर्नियर का वर्थ कितना है। तो हमने वर्नियर का वर्थ ढूंढा, तो क्वेश्चन में गिवन था दैट 30 डिवीजन ऑफ वर्नियर मैचेस विद द 29 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। तो हमने 30 वर्नियर इज इक्वल टू 29 मेन स्केल, देन 1 वर्नियर का कितना वर्थ होगा, इट विल बी 29/30 मेन स्केल। देन क्या होगा, अब हम इसको फॉर्मूले में रखेंगे, तो ये जो वैल्यू आई है हमारी,
इसको अब हम फॉर्मूले में रखेंगे यहाँ पर। तो 1 तो मेन स्केल है और हमने 1 वर्नियर को भी निकाल लिया, कितना है 29/30 मेन स्केल है, तो मेन स्केल बाहर आ गया और हमने 1 माइनस 29/30 सॉल्व किया। तो अब एलसीएम लेके आप ऐसे 30 से 30 माइनस 29 क्या आ गया 1/30 मेन स्केल। और क्वेश्चन में मेन स्केल की वैल्यू दी थी हाफ डिग्री, ये हमने दिया है कि मेन स्केल की वैल्यू कितनी है हाफ डिग्री। डन। आई गेस नेक्स्ट आंसर करने लग गए क्या आप लोग? शिव प्रसाद देखिए 188 का आंसर करें सब लोग, क्वेश्चन नंबर 1 से। ओके गुड। 188 का करेक्ट इनकरेक्ट है बेटा आंसर अभी आपका, रीसॉल्व करें, चेक करें यार सब लोग। ओके भार्गव करेक्ट है यार, आर्य भी करेक्ट है। शिव प्रसाद एंड जिया यू चेक योर आंसर्स। Okay, good. Vishwaraj, correct answer. Very good. Everyone should do that because same pattern. Whatever pattern I have written here, this the logic used for 187, question number 187 is exactly same as for the 188. So first you need to find the vernier. What is the worth of vernier? So you search what is the worth of vernier. So you'll see in a vernier calipers, one main scale division is X. So one main scale division is X. Okay. Then n division on vernier, ये हमारा मेन टारगेट है. What is the worth of vernier? n division on vernier coincide with n-1 division on main. मतलब हमें मिल गया हमारा टारगेट. हमारा टारगेट क्या था? n वर्नियर स्केल डिवीजन मैच करते हैं किससे? n-1 ऑफ मेन स्केल. सॉरी एक मिनट, मैंने गलत उल्टा लिख दिया, जस्ट उल्टा लिख दिया. ओके देख लेते हैं. क्वेश्चन ये है एंड n डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल coincide with the n-1 डिवीजन ऑन द मेन स्केल. सही है, ठीक है. n-1 ऑन द मेन स्केल, तो इसका मतलब 1 वर्नियर का वर्थ कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा n-1/n. वेरी गुड. मेन स्केल डिवीजन. अब फॉर्मूला लगाना यार. देखो जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लगाया था सेम फॉर्मूला. क्या हो जाएगा लीस्ट काउंट का? लीस्ट काउंट हो जाएगा 1 वर्नियर 1 मेन स्केल माइनस 1 वर्नियर. 1 वर्नियर का भी हमने वर्थ देखा n-1/n. इट इज ऑफ मेन स्केल डिवीजन. अब सॉल्व कर दो. n का मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो n कैंसिल. जैसे ये सॉल्व होगा n-n+1/n मेन स्केल. n क्या होगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, विच मीन्स दीज n कैंसिल आउट. तो बचेगा क्या? 1/n ऑफ मेन स्केल. अब क्वेश्चन में देखो मेन स्केल गिवन है. द वन मेन स्केल इज x सेंटीमीटर. तो मेन स्केल इज x centimeter and in the divide it is n. So answer will be x/n centimeter, which means the correct answer for this is B. Same scenario we are repeating it. So it should be clear by now. Let's check question number 189. It is again the similar question. Now everyone should be able to follow this question. 189. Start solving. The similar concept shown here. Similar concept. Very good. So a lot of students gave the answer. Correct answer. Yes, the correct answer is B. Very good. Again, I'll mark. Again, I'll repeat. Notice everyone. देखें, देख लो यार फिर से.
n scale, n division on main scale coincides with n+1 on वर्नियर। और मैंने क्या बताया बेटा, वर्नियर ही तो ढूंढना है, वर्नियर ही ढूंढना है। मतलब क्या हुआ, देखें, मतलब ये हुआ, पहले वर्नियर लिखो हमेशा, n+1 ऑफ वर्नियर कोइंसाइड विद n मेन स्केल डिवीजन। दैट मीन्स 1 वर्नियर स्केल डिवीजन का वर्थ कितना हो जाएगा, n/n+1 मेन स्केल डिवीजन। अभी सॉल्व कर दो। द लीस्ट काउंट इज डिफाइंड बाय 1 - 1 बाई वर्नियर। सो वर्नियर कितना है, n/n+1। वर्नियर इज लाइक दैट ऑफ मेन स्केल डिवीजन। तो अभी सॉल्व किया, सो सॉल्व करें यार, n+1 इधर कैंसिल आउट हुआ, तो n और n कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया, 1/n+1 ऑफ मेन स्केल। और इन क्वेश्चन आपको दिया होगा कि व्हाट इज द वर्थ ऑफ मेन स्केल। सो इफ वी सर्च ऑन द मेन स्केल is a unit, so each division in the main scale is a unit, that means main scale का वर्थ कितना है, a unit है। so we can use the final value, this one, it will be main scale is a unit, main scale is a unit, and divide by this is n+1, so we'll get a by n+1 units. So I guess by this it should be clear to everyone. Again, then let's try question number 190. Okay, 190 and all, every question is a sort of same, slight difference is there, so वो आप लोग यूज कर सकते हैं। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे लास्ट में कुछ चीजें दी हुई हैं, जैसे कुछ फॉर्मूले डायमेंशन में मे भी आपको यूज करनी पड़े, क्योंकि डायमेंशन फॉर्मूले में काफी सारी चीजें यूज करनी है। तो उसमें से कुछ है प्लैंक कांस्टेंट। आपको पता है प्लैंक कांस्टेंट का, आपने केमिस्ट्री में हो सकता है फॉर्मूला ये वाला सुना हो, एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताते हैं कि एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है क्या, mc²। ये तो बेटा सबको याद है, आइंस्टाइन्स इक्वेशन, E इज इक्वल टू mc²। सिमिलरली एक और इक्वेशन होती है h न्यू, ये जो छोटा सा v टाइप बना है इसे बोलते हैं न्यू, और ये न्यू का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी, और मैंने बता चुका हूँ फ्रीक्वेंसी मतलब होता है 1/टाइम पीरियड। तो यहाँ से हम h की डायमेंशन निकाल सकते हैं। फिर एक और फॉर्मूला यहाँ पे आता है, क्या है, एंगुलर मोमेंटम। तो फिजिक्स में याद रखें, एंगुलर मोमेंटम है वो L से रिप्रेजेंट होता है। एंगुलर मोमेंटम का पैटर्न क्या है, ये है लीनियर मोमेंटम इनटू r। तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है, mv इनटू डिस्टेंस करा देते हैं तो बन जाता है एंगुलर मोमेंटम। क्लियर? फिर इस तरीके से कुछ फोर्सेस हैं लाइक सरफेस टेंशन और ग्रेविटी, वो सारी चीजें इसमें बता दी गई हैं। क्लियर? तो ये आप लोग को थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। हम स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में एक बार डिस्कस कर लेता हूँ, बाकी क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करें, फिर मैं एक बार जो भी डाउट्स होंगे वो सारे लोग के डिस्कस कर लेंगे मिलके। अभी देखें, थोड़ा सा देख लेते हैं कि कुछ क्वेश्चंस आपको जैसे नए मिलेंगे। अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन, अगर हम इसमें बात करें यूनिट्स में से, तो कुछ नई नई यूनिट्स आपको हो सकता है देखने को मिल जाए, तो वो सारी चीज़ें आप लोग यहाँ से याद करते जाएंगे। यहाँ पे मैंने बताया था कि एक चीज़ मैं आपको फाइनली बताऊंगा, एक रिलेशंस, क्या, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और पार्सेक के बारे में, ये सारी चीज़ें एक बार बताऊंगा। बाकी आप चीज़ें एक बार देख लो, नेक्स्ट लेक्चर में जब हम डिस्कस करेंगे तो सारे क्वेश्चन मैं डिस्कस कर लूँगा। मैं आप लोग को बस एक एक्स्ट्रा पार्ट डिस्कस करने वाले थे हम, पार्सेक और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बारे में, वो थोड़ा सा आप लोग सीखें। एक चीज़ देखें, अगर हम बात करते हैं, ये बहुत बड़ी यूनिट्स हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अगर, तो सपोज ये अगर हम बात करें थोड़ा सा, तो हमारा जो अर्थ है वो सन का एक एलिप्टिकल शेप में जो है अर्थ रिवॉल्व होती है, किसके राउंड, सन के राउंड। तो ये हमारी यहाँ पे लेट से ये अर्थ है, और ये इस तरीके से एक एलिप्टिकल शेप में रिवॉल्व करती है अर्थ। अब देखें, तो अर्थ और सन के बीच की जो डिस्टेंस है उसका कोई ना कोई एक सेंटर होगा ना, एक सेंटर होगा। तो लेट से अर्थ बहुत दूर है, मान लेते हैं ये डिस्टेंस है r1 विच इज द लार्जेस्ट डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस है जब वो बहुत पास होता है समर टाइम पे r2। तो इनका जो बीच का पॉइंट है, मतलब क्या, r1 + r2/2। क्लियर? ये हुआ क्या, इसका सेंटर का रेडियस। इस डिस्टेंस को बोलते हैं, ये जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं इट इज अ एवरेज डिस्टेंस ऑफ सन एंड अर्थ। एक्चुअल में तो कभी कभी इससे ज्यादा भी है और कभी इससे कम भी है,
but this average distance, which is 1.5 into 10 to the power 11 मीटर, और किलोमीटर में चाहिए तो 3 हटा दो, 1.5 into 10 to the power 8 किलोमीटर। ये जो डिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो ये जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो ये जो एवरेज डिस्टेंस है इसको बोलते हैं 1 AU। क्लियर? ये बन जाता है हमारा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो ये आपको थोड़ा सा समझना है कि व्हाट इज 1 AU। अब बात करते हैं AU से जस्ट थोड़ा सा बड़ा होता है लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या होता है? लाइट ईयर मैंने बताया इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट, डिस्टेंस इन 1 ईयर, डिस्टेंस बाय लाइट। तो डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं? स्पीड इनटू टाइम। लाइट की स्पीड क्या होती है? 3 into 10 to the power 8 into 1 ईयर। सो 1 ईयर में हमें पता है 365 डेज। एक डेज में कितने आवर? 24 आवर। और एक आवर में 3600 सेकेंड्स। तो ये पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाता है कितना? लाइट ईयर्स। इतने मीटर हो जाएगा हमारा लाइट ईयर। तो एक यूनिट है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, उससे बड़ी यूनिट है लाइट ईयर। अब उससे भी बड़ी यूनिट है एक पारसेक। तो वो जो 1 पारसेक होता है वो क्या होता है? वो होता है 3.26 ऑफ लाइट ईयर। ये जो 1 पारसेक होता है वो होता है 3.26 ऑफ लाइट ईयर, मतलब लाइट ईयर से भी बड़ा होता है। अब बात करते हैं पारसेक आता कैसे, किस तरीके से आता है। तो जब हम अर्थ से कुछ भी ऑब्जर्वेशन ले रहे होते हैं ना, ये हमारा यहाँ पर सन है, ये हम अर्थ से कुछ ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं। लेट्स से हम किसी डिस्टेंस स्टार को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो 1 पारसेक होता है जब ये स्टार हमारे आईज पे यहां से कितना एंगल बनाता है? 1 सेकेंड का एंगल बनाता है। 1 सेकेंड। और मैंने अभी जस्ट बताया कि 1 सेकेंड मतलब क्या हो जाएगा, अगर एंगल वाइज देखें तो 1 सेकेंड को लिखते हैं डबल डैश से। 1 सेकेंड मतलब कितना होगा? 1/60 ऑफ मिनट। और 1 मिनट होता है अगेन 1/60, दैट इज 1/3600 ऑफ डिग्री। हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 1 पारसेक होती है ये डिस्टेंस। तो इस डिस्टेंस को बोलते हैं 1 पारसेक। कब? जब 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हमारे आइज पे, ये 1 AU हमारे आइज पे कितना एंगल बनाती है? 1 सेकेंड का एंगल बनाती है। तो उस चीज को बोलते हैं क्या? पारसेक। तो ये तीनों बहुत ही लार्जर यूनिट्स हैं डिस्टेंस की, जो मैंने सोचा आप लोग को बता देते हैं तो आपको बेटर यूज होगा। ये सारी चीजें एस्ट्रोनॉमिकल फॉर्मेट में यूज होती हैं, एस्ट्रोनॉमी में यूज होती हैं। क्लियर? चले, तो अभी एक बात और डिस्कस कर लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो बिल्कुल न्यू हैं, उनको मैं फिर से बता दूं कि हमने ग्रुप पे गूगल फॉर्म डाला हुआ है। जितने स्टूडेंट एकदम न्यू हैं उनके लिए बता रहे हैं कि हमने ग्रुप पे गूगल फॉर्म आपको दिया हुआ है। जो भी स्टूडेंट्स ये संडे तक प्रिपेयर्ड नहीं है, मतलब जिन्होंने काफ़ी सारे लेक्चर मिस किए हैं, जिन्होंने सेम लेक्चर मिस किए हैं, सपोज 1 या 2 लेक्चर मिस हैं, वो थोड़ा सा रिवाइज कर लें, शीट सॉल्व कर ले, टेस्ट में आपको बहुत अच्छा स्कोर आ जाएगा। लेकिन जो स्टूडेंट एकदम रिसेंटली ज्वाइन है, जिन्होंने अभी बस 1 या 2 लेक्चर ही किया हुआ है, वो रजिस्टर करें बैच 2 के लिए। बैच 2 के लिए हमने गूगल फॉर्म डाला हुआ है जिसमें आपको क्या क्या डिटेल्स एंटर करनी है मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। इसमें किसी को कुछ डाउट रहता है तो बता सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो नंबर 1, आपको ऑनलाइन क्लासेस के लिए बैच 2 के लिए रजिस्टर करना है। आपको अपना नेम डालना है, वहाँ पर आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालना है, आपको वहाँ पे अपना रिसेंट कॉलेज डिटेल्स डालना है, मतलब कॉलेज नेम डालना है कि आपका रिसेंट कॉलेज क्या था। उसके बाद आपको क्लास फॉर सेशन 2021 के लिए सेलेक्ट करना होगा। तो क्लास फॉर सेशन में आप सेलेक्ट कर सकते हैं, सपोज मैं क्लास 11th से बात कर रहा हूँ, तो क्लास 11th में वेदर आप बायोलॉजी के लिए प्रेफर करने वाले हैं या जेई के लिए प्रेफर करने वाले हैं, वो सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ऑफ कोर्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि मतलब आपको इंटरेस्ट भी है क्लास लेने में या नहीं, बिकॉज अनइंटरेस्टेड क्राउड का कुछ भी पर्पज नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि यार एक मूवी चल रही है 1.5 आवर और आप मूवी देख रहे हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो, सच में आपको कुछ करना है और सच में आपको अपने टाइम को यूटिलाइज करना है, अगर इंटरेस्टेड है, देन ओनली सिलेक्ट यस। क्लियर?
हाँ, मे भी ज्यादा नहीं सिलेक्ट करेंगे, मे बी वाले लोग ये सही नहीं है, ठीक है, इधर यस और नो। देन द नेक्स्ट पार्ट, आर यू अटेंडिंग आवर लेक्चर्स, मतलब जो अभी आपने किसी भी टीचर का कुछ भी लेक्चर अगर अटेंड किया है तो आप बता सकते हैं, इससे हमें आइडिया होगा कि ऑलरेडी आपने किया है। और अगर आपने लेक्चर लिया या कुछ फीडबैक है या आपको कुछ भी फीडबैक देना है कि इन्फॉर्मेशन आप तक नहीं पहुंच रही है, डिटेल्स वगैरह, वो आप कर सकते हैं। इसके थ्रू क्या होगा, जो भी स्टूडेंट इसके थ्रू रजिस्टर होंगे हम उनका एक सेपरेट ग्रुप बनाएंगे और जो भी लेक्चर्स हम अभी पहले ले चुके हैं उनमें से कुछ लेक्चर्स जो सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट है वो रिवाइज करेंगे और आपको भी प्रेफर करेंगे कि आप एक बार, मैंने पूरी प्लेलिस्ट ग्रुप पे डाली हुई है, आप एक बार रिव्यू कर लें सारे लेक्चर्स को। और एक चीज, टेस्ट से डरना नहीं होता है, टेस्ट को एज एन अपॉर्चुनिटी ट्रीट करना होता है, तो आपको वो चीजें ध्यान देनी है। नंबर 2, जो स्टूडेंट ऑलरेडी लेक्चर्स ले रहे हैं, जिन्होंने काफी लेक्चर्स ऑलरेडी हमारे कर लिए हैं, वो क्या कर सकते हैं, वो हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। वेबसाइट अगर चाहिए तो आप गूगल सर्च भी कर सकते हैं, इंस्पायर कोल्हापुर या फिर इंस्पायर एकेडमी कोल्हापुर, आप गूगल पे सर्च कर लें। तो गूगल सर्च पे आपको इंस्पायर एकेडमी कोल्हापुर पे में भी बहुत सारी इंस्पायर फैसिलिटीज दिखा सकता है। तो आवर एड्रेस इज सेकेंड फ्लोर तथास्तु कॉर्नर, सेकेंड फ्लोर तथास्तु कॉर्नर, ये एड्रेस पे आप इस एड्रेस वाले कॉलम को सर्च कर सकते हैं, या फिर अगर आपने पहले कभी विजिट किया हुआ है तो आपको डायरेक्टली ही इंस्पायर एकेडमी कोल्हापुर दिखा देगा कुछ इस तरीके से। तो इंस्पायर एकेडमी कोल्हापुर में आप कॉल मैसेज कर सकते हैं, और अगर हमारी वेबसाइट पे जाना है तो आप डायरेक्टली वेबसाइट पे भी जा सकते हैं इसके थ्रू। क्लियर? तो आप यहाँ पे डायरेक्टली आप वेबसाइट पे जा सकते हो इंस्पायर कोल्हापुर की। अगर आपको डायरेक्ट वेबसाइट इंटर करना है तो आप अपने वेबसाइट सर्च बॉक्स पे गूगल पे कहीं पे भी डायरेक्टली वेबसाइट इंटर कर सकते हैं, inspirekolhapur.in। inspirekolhapur.in पे अगर हम दिखाएं, जब आप वेबसाइट एंटर करेंगे आप पूरी वेबसाइट भी देख सकते हैं, उसमें काफ़ी सारी डिटेल्स और बाकी सारी चीज़ें रहेंगे। आपको 2 कॉलम मिलते हैं, एक मिलता है एडमिशन ओपन का, एडमिशन ओपन फॉर द न्यू सेशन। तो जो स्टूडेंट्स नए रजिस्टर करने वाले हैं वो इस सेक्शन पे जाएंगे, और जो अदर स्टूडेंट है, अगर आप लोग किसी को इन्फॉर्म करना चाहते हैं या किसी को सजेस्ट करना चाहते हैं तो बाकी लोगों को भी सजेस्ट कर सकते हैं, दे कैन क्लिक हेयर। अगर वो फिल करना चाहते हैं तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस का जो बैच 2 फॉर्मेट है उसके मोस्टली लेक्चर्स हमने 25 से स्टार्ट कर दिए हैं। तो जो लेक्चर्स लेना चाहते हैं वो लेक्चर अटेंड कर सकते हैं बैच 2 के, वापस से हम वहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। तो वो स्टूडेंट यहाँ पर क्लिक करेंगे। बट एज अभी तक हमने जो देखा है, यूजुअली स्टार्टिंग से 50 स्टूडेंट्स ने लेक्चर्स अटेंड किए हैं। अभी तक इनरोलमेंट फॉर्म में अभी तक सिर्फ 30 स्टूडेंट ने ही फिल किया, दैट मीन्स अभी भी 20 रिमेनिंग है। तो एडमिशन फॉर्म के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। एडमिशन फॉर्म फिल करने के लिए आपको एक साइन अप फॉर्म आएगा। जैसे ही आप एडमिशन फॉर्म फिल करते हैं, इस साइन अप फॉर्म में आपको अपना नेम देना होता है, आपको ईमेल आईडी देना है, आपको मोबाइल नंबर देना है। मोबाइल नंबर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। Then you can create your own password, you can choose your own password, then you can select the class. Suppose you are in 11th, then you can select, suppose you are in NEET, you can select this. Then you, after filling up, you can sign up. So I filled in like the my name, my email, my mobile number. So you can also note down these values in case of future use, अगर आपको कुछ contact करना है मेरे से। तो यहाँ पर मैंने चूज किया हुआ है, लेट्स से 11th, लेट्स से नीट सेक्शन, बायोलॉजी सेक्शन, एंड देन आई विल साइन अप। आफ्टर साइन अप आई विल गेट एन ओटीपी इन माय मोबाइल नंबर। इसलिए मैं बोल रहा था मोबाइल नंबर इंपॉर्टेंट है, आप लोग को प्रॉपर करेक्ट मोबाइल नंबर ही फिल करना है। सो यू विल गेट दिस ओटीपी नंबर। बैक बटन नहीं दबाना है, अदरवाइज आप सीधा वेबसाइट पेज पे चले जाओगे और वो ओटीपी कैंसिल हो जाएगा। तो इसे ओपन रखना है। ओटीपी में भी डिपेंड करेगा आपके मोबाइल नेटवर्क पे कि किस मोबाइल का कितना क्राउड है, तो डिपेंडिंग ऑन दैट आपको ओटीपी आ सकता है। 1-2 मिनट इसमें लग सकता है, नॉट अ बिग प्रॉब्लम। ओटीपी आते ही आप ओटीपी इंटर करें और वेरीफाई कर सकते हैं खुद को। जैसे ही आपका करेक्ट वेरीफाई होगा, करेक्ट ओटीपी होगा, आप तुरंत लॉगिन पैनल में चले जाएंगे हमारे, मतलब हमारी वेबसाइट के एक्चुअल सेक्शन में। वहां पर आपको एडमिशन फॉर्म मिलता है, वहां पर हम एडमिशन फॉर्म फिल करेंगे। एडमिशन फॉर्म में कुछ चीजें प्री सिलेक्टेड है जो आपने ऑलरेडी भरी हुई हैं, आपका क्लास और टॉपिक एंड सेशन। देन एक आता है सेलेक्ट इमेज। सेलेक्ट इमेज में आपको सेलेक्ट करना है, आप जस्ट क्लिक करोगे तो पॉपअप आएगा रिलेटेड कि आपको पाथ चूज करना है, यू वांट टू क्लिक डायरेक्टली और कुछ भी। तो इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत फैंसी सा इमेज डालना है, कुछ भी आप तुरंत वेब अपना मोबाइल कैमरा ऑन करके एक
पासपोर्ट साइज फोटो ले सकते हैं। कोई भी साइज का इमेज यहाँ पर अपलोड किया जा सकता है, कोई बाउंडेशन नहीं है, ध्यान देना है, कोई भी साइज का इमेज कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। देन अपना नेम आपका ऑलरेडी प्री फिल्ड रहेगा। देन आप डेट ऑफ बर्थ, कुछ स्टूडेंट्स ने बोला है डेट ऑफ बर्थ में प्रॉब्लम आ रही है, तो डेट ऑफ बर्थ यार आपका जो मोबाइल या लैपटॉप का कैलेंडर है उससे ही लिंक होता है। जैसे ही आप डेट ऑफ बर्थ पे इस एरो पे क्लिक करेंगे या फिर कहीं पे भी डेट ऑफ बर्थ में क्लिक करेंगे, आपको कैलेंडर का पॉपअप आएगा और आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप ईयर चूज कर सकते हैं, ये मैंने एंड्रॉयड फोन पे लिया हुआ है तो ये एंड्रॉयड का कैलेंडर है। यहाँ पे ईयर चूज कर सकते हैं, इन एरोज के थ्रू आप मंथ चेंज कर सकते हैं और आप डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। सो आफ्टर फिलिंग, जैसे आप फिल करके सारा कुछ सबमिट करते हैं, सपोज मैंने सारी डिटेल्स फिल कर दी हैं, अपना आधार नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आधार नंबर एंड कैटेगरीज, ये सारी चीज़ें एंड अदर रिमेनिंग डिटेल्स आप फिल करते हो, उसके बाद आप फाइनल सबमिट कर सकते हो। अगर किसी स्टूडेंट को कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो एक स्क्रीनशॉट ले सकता है, जो भी प्रॉब्लम है, किसे लग रहा है कि अगर ये वाला प्रॉब्लम आ रहा है वो उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे व्हाट्सएप कर सकता है, मैं देख लूंगा इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम विच कैन बी रिजॉल्व इजिली। देन आप फाइनल सबमिट करने के बाद आप डैशबोर्ड सेक्शन में आ जाओगे जहां आपको अपनी डिटेल्स दिखेंगी। डैशबोर्ड सेक्शन में आप स्क्रॉल करोगे और नीचे आओगे तो वहां पर आपको दिखेगा एक एडमिशन फॉर्म सेक्शन और एक होगा डाउनलोड फॉर्म सेक्शन। एडमिशन फॉर्म सेक्शन में आप क्लिक करके अपनी डिटेल्स वेरीफाई कर सकते हो कि आपने क्या फिल किया हुआ है, मतलब नेम, क्लास, ग्रुप, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, फादर्स नेम, ऑक्यूपेशन नंबर एंड रिलेटेड डिटेल्स एंड एड्रेस एंड ऑल, एंड द रजिस्ट्रेशन टाइमिंग कि आपने कब रजिस्टर किया हुआ है। डन। तो ये व्यू कर सकते हैं आप कहाँ पर, एडमिशन फॉर्म सेक्शन में आप व्यू कर सकते हैं। देन देयर इज एन ऑप्शन फॉर डाउनलोड फॉर्म, आप एक फॉर्म की इंस्पायर की कॉपी भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आप डाउनलोड फॉर्म कॉपी करेंगे, सो आफ्टर डाउनलोड इट विल ओपन लाइक दिस with the date, stamp, name and everything in the form of our actual admission form। तो ये हमारा एक्चुअल एडमिशन फॉर्म होगा जो कॉपी हमारे पास रहने वाली है। देन आप डाउनलोड करने के बाद अगर आप ये मेन्यू बार में अगर क्लिक करेंगे, सो यू विल सी द बटन ऑफ लॉग आउट। सो फ्रॉम देयर यू कैन लॉग आउट योरसेल्फ, do remember to log out। Then there you get some features of like online test, DPP, results and diary section. We'll explain these letters like how the diary section works. You can directly send messages to your teacher, your faculties from the diary section. In the result section, you'll see the results of online tests you attempted. In the online section, you can see all the online tests which will be allowed to you. You will see there. In the DPP section, you will click, you will see different types, different subjects of DPP. वो further जब हम upload करेंगे, you will be able to access these. But for now, you will be able to access online tests. So like that, you can confirm final things. Then once you log out from your panel, then in the next time when you want to give exam or certain things, how to log in, no need to register again and again from this part. There in the Inspire website, you will see at the bottom corner, you will see a button of called login. So at the bottom right corner, you will see a button of login. If you log in there, you will see a panel of student login like this. There you can enter your username. So those users who are registering by themselves, they can enter their mobile number as a user ID. So you will enter your mobile number, you will enter your password. If you forgot your password, you can reset your password here also. Clear? So by that you can log in our panel on the Sunday when there will be an exam. Clear everyone? So I guess it is clear for everyone. It is most important to fill this form. If you won't fill the admission form, you won't be able to go to the online test section. So it's preferable you fill the admission form, and if there is any problem, you can send me screenshot of your whatever the problem or error page you are getting, and we'll try to resolve that. Okay. And the student who are totally new, who are attending this lecture first time, see the Google form posted in the group and fill that Google form. It will be really helpful for us to arrange revision lectures or lectures we have already taken for the students. Clear? So do fill the Google form for the batch 2 who are attending these lectures just recently, like 1 or 2 of lectures they have attended. Okay, then I think I made myself very clear for these two processes. One, the online registration for batch 2 and the admission form for
बैच 1 सेक्शन। ओके, सो जो फिजिक्स की शीट मैंने ग्रुप पे डाली हुई है प्रैक्टिस शीट, वो शीट बिल्कुल सॉल्व कर ले सब लोग। नेक्स्ट लेक्चर में हम उसके डाउट्स डिस्कस करेंगे, जो भी चीज़ें हैं। क्लियर? So I think it will be okay for today. It is okay for today. Okay. Goodbye everyone. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Bye, Bye bye everyone. Bye bye. Bye, bye. Bye, sir.